اس سٹیج کی زینت تھی، لیکن اللہ کے فیصلے اپنے ہوتے ہیں۔ آج وہ اس گلستان کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے، لیکن جو بابا جی نے فیض ان کو دیا اور انہوں نے آگے جو تقسیم کیا، یہ جتنے متوسلین، متقلبین، وابستگان اور مریدین جتنے بھی ہیں، یہ فیض قیامت تک جاری و ساری رہے گا ان کے لیے۔ شرط یہ ہے کہ تعلق کو مضبوط کرنا۔ پنڈال سے گزارش ہے کہ تماشائی بن کے نہیں بیٹھتے محفل پاک میں، بلکہ تمنائی بن کے بیٹھتے ہیں، تاکہ محفل کے جو مقصد ہے ان کو پورا کیا جائے۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا نوجوانوں سے، بچوں سے، چند لمحوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر خاموشی سے بیٹھے، تاکہ قرآن و حدیث آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سکے۔ بڑی ضرورت ہے، موضوع میرا کچھ اور تھا، ٹائم کی پابندی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں اس طرح کی محافل میں لوگوں کی تربیت بڑی ضروری ہے، بڑی ضروری ہے تربیت لوگوں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نعت کا تقدس کیا ہے، نعت کس طرح پڑھنی ہے، کیسے سنانی ہے۔ ہم نے نہ آپ کو بتایا اور نہ آپ کو پتہ، اور میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ میں نے خود دیکھا محفل پاک میں تماشائیوں کی طرح لوگ جو تھے وہ ایک نعت پہ نعرے کی صورت میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر رکھے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ یار، کون ایسا بندہ ہے جو حضرت علی کو نہیں مانتا؟ وہ علی کی دہلیز کو چھوڑ کر دنیا میں کبھی کوئی کامیاب ہوا ہے؟ لیکن علی کا کردار اور علی کے اولاد امام حسین کا کردار تو دیکھیں نا، دنیا کو بتایا کیا ہے؟ یار یہ تو دیکھیں نا کہ مولا علی کی نسل نے دنیا کو پیغام کیا دیا کہ لوگوں، دین کو اپنی مرضی کے مطابق نہ چلاؤ، ساری ادیان سے افضل اور اعلیٰ جو دین ہے وہ دین اسلام ہے، اور اس کی تعلیمات سارے مذاہب سے اعلیٰ اور افضل تعلیمات ہیں۔ اس کے باوجود ہم پسپائی کا شکار کیوں ہیں؟ وہ اس لیے کہ اس کی تعلیمات کو ہم نے اپنے مطابق سوچا کہ ہم کس طرح لوگوں کو خوش کر سکیں، اور جس طرح بنی اسرائیل کے لوگوں سے نذرانے لینے کے لیے لوگوں کو خوش کرتے تھے، ان کے علماء، ہم نے بھی اس طرح کر لیا کہ آپ کو خوش کرنے کے لیے، نذرانے لینے کے لیے آپ کو کہا کہ بس نعرے لگانے شروع کر دیں۔ اور اللہ کے بندو، دین کچھ اور ہے۔ یہ میں باتیں ان کے لیے کر رہا ہوں کہ جو معرفت الہی کے متلاشی ہیں۔ اور یقین مانیں، حضرت جنید بغدادی نے اپنے استادوں سے پوچھا، حضرت مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، تو آپ نے جنید بغدادی کو وظیفہ بتایا کہ صبح شام تیرا وظیفہ یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ میرے ساتھ ہے۔ ہم نے کیمروں کے ڈر سے یونیورسٹیوں میں کیمرے لگ گئے، مسجدوں میں کیمرے لگ گئے، ہسپتالوں کے اندر کیمرے لگ گئے،
गुनाह उस वक्त ख़त्म होगा जब गुनाह का एहसास दिल के अंदर पैदा होगा। कैमरे लगाने की वजह से गुनाह नहीं ख़त्म होते, और कैमरे के डर की वजह से हम गुनाह छोड़ देते हैं कि कैमरे की आंख देख रही है। कभी ये भी सोचा है कि हमें अल्लाह देख रहा है? और कभी सोचा है? और अल्लाह के बंदो, अल्लाह हर लम्हा देख रहा है। वजीफा बताया पीरों ने कि अल्लाह मेरे साथ है और अल्लाह मुझे देख रहा है। अल्लाह मेरे साथ है और अल्लाह मुझे देख रहा है। तो फिर खुदा पैदा करना चाहिए, तकवा अख्तियार करें अपनी ज़िंदगी में। इन लोगों ने ये मुकाम और मर्तबा ऐसे नहीं पाया, इन लोगों ने अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह की बारगाह में सर्फ कर दिया और अल्लाह की रज़ा की खातिर ज़िंदगियां इन्होंने बसर की हैं, इसलिए मुकाम ये पाया। आपने बहलोल दना के बारे में नहीं पढ़ा? दना कहते हैं अक्लमंद को, साहबे बसीरत को, जो सियाना बंदा हो उसे दना कहते हैं। और वो तो दीवाने थे, बहलोल दना, वो तो दीवाने थे। उलमा ने उनके साथ दीवाने से दाना लगाया, और उन्होंने इसलिए दाना लगाया, उलमा लिखते हैं असल अक्लमंद वो है जो दरे रसूल पर भी जिसकी रसाई है और दिले रसूल पर भी जिसकी रसाई है। दरे रसूल पे तो सारे जाते हैं, हुक्मरानों के लिए रोज़ा रसूल का दरवाज़ा भी खुलता है, जाते हैं ना। बड़े बड़े बादशाहों के लिए काबे का दरवाज़ा भी खुला है और रोज़े का दरवाज़ा भी खुल जाता है। इसका मतलब है बड़े नेक हो गए हैं। और नहीं यार, और दरे रसूल पे तो सारे जाते हैं। असल मकसद है दिले रसूल तक पहुंचना। दरे रसूल तक बादशाह की रसाई खो जाती है, लेकिन अल्लाह के जो नेक बंदे हैं वो दरे रसूल पे भी जाते हैं और दिले रसूल पे भी जाते हैं। सारे थोड़ा पहुंच जाते हैं। वो दरे रसूल पे भी पहुंचे थे और दिले रसूल तक भी उनकी रसाई थी, बहलोल दना की। हालांकि दीवाने थे, उनको दना कहते हैं। दरियाए दजला के करीब है, मट्टी के मकान बना के खुद ही मिटा रहे हैं, खुद ही बना रहे हैं। जब बना रहे हैं तो खलीफा बादशाह गुजरा, हारून रशीद। उसने कहा जी क्या कर रहे हैं? आपने फरमाया कि मैं जन्नत के मकान बना रहा हूँ। बादशाह ने कहा बेचना है? हाँ बेचना है। बादशाह ने कहा ऐसे ही दीवाना सा है, मजजूब सा है, बैकी बैकी बातें करता है। मुस्कुरा के आगे चल पड़ा। मुस्कुरा के थोड़ी देर के बाद उसकी बीवी मलका जुबैदा गुजरी। उसने पूछा कि दरवेशों से, बहलोल दना से, क्या कर रहे हैं? कहा जी मैं मट्टी के जन्नत के मकान बना रहा हूँ। मलका जुबैदा ने कहा बेचना है? जी बेचना है। कहा कि कितने का बेचना? कहता 10 दिरहम का। वो मलका थी, वो शहजादी थी, उसे 10 दिरहमों की क्या परवाह थी। उसने दे दिए और आपने बहलोल दना ने वो 10 दिरहम लेके दरियाए दजला में फेंक दिए। वो भी पास दाता साहब कशफुल माजूब में फरमाते हैं, और फकीर उतनी देर तक फकीर बन ही नहीं सकता जब तक उसकी नजर में सोने की डली और मट्टी की डेली बराबर ना हो जाए, वो फकीर ही नहीं बन सकता। पैसे के साथ फकीर का क्या लेन देन है? आपने जरा साहब देखे हैं ना, यामीन साहब, मैं अक्सर कहा करता था, मैं कहता है पहले पीर ने जिन्ना को जाइए तो पैसे ये देंदे ने। और मैं जिन्नी बारी गया मैं क्या हजरत मस्जिद च खत्म है, इन्ने ही पैसे कड्ढे ने, 1000 कड्ढे, 2 कड्ढे, गिने भी नहीं। इसे फकीर कहते हैं। मैं अक्सर ये कहा करता था, मस्जिद में मेरी नमाज वो जुम्मा पढ़ते थे, तरावियाँ पढ़ते थे, मैं अक्सर कहा करता था कि ये पहले पीर हैं, ये अपनी जेब से लोगों को पैसे देते हैं। हर पीर की लोगों की मुरीदों की जेबों पे नजर होती है, फकीर का क्या काम है पैसों का? तो बहलोल दना ने वो
फेंक दिए। बादशाह रात को सोता है, सुनने वाली बात है, बादशाह रात को सोता है तो देखता है ख्वाब में देखता है जन्नत में पहुंच चुका है। जन्नत में 2 महल हैं। एक महल बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ा ही खूबसूरत है, जिसके ऊपर लिखा है मलका जुबैदा। वो बादशाह उसके अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है तो जन्नत का फरिश्ता कहता है ना जी ना। कहा मेरी बीवी का है। कहा ये कानून दुनिया के हैं। कहा जी ये कानून दुनिया के हैं। अच्छा सुने जी, ये कहा जी ये कानून मलका जुबैदा का ऊपर जन्नत पे नाम लिखा था ना, महल पे दाखिल होना चाहा। कहा ये कानून दुनिया के, तुझे नहीं इजाजत होगी। आंख खुली तो बीवी को बुलाया ना, तो बीवी को कहा कि क्या काम करती है। मैंने ख्वाब में देखा जन्नत के ऊपर, महल के ऊपर तेरा नाम लिखा है। कहती है काम तो मेरा कोई नहीं। हाँ याद आया कि दरियाए दजला के करीब वो दरवेश बैठा था, उसने ऐसा ही कहा, मकान बना रहा था जन्नत के, तो मैंने कहा देना है। कहता देना है। मैंने कहा कितने के जी? 10 दिरहम के। मैंने 10 दिरहम दे दिए। तो मुझे लगता है उसकी दुआ की वजह से अल्लाह ने मुझे जन्नत में महल दे दिया है? बादशाह ने कहा कि वो मेरी किस्मत माड़ी, वो तो मुझे भी दे रहा था, मैंने मजाक समझा, दरवेश की बात नहीं ना समझ सका, वो तो मुझे भी दे रहा था, मेरी किस्मत माड़ी। भागा। बहलोल दना वहां ही बैठा था, दिल था फिर पूछे। दरवेश ने दिल पढ़ लिया। दरवेश कहते हैं, बादशाह कहता क्या कर रहे हैं जी? जन्नत के मकान बना रहा हूं। देने हैं? कहा जी देने हैं। कितने के? आपने फरमाया आधी सल्तनत तेरी लूंगा, फिर जन्नत का महल दूंगा। है कल कितने का? 10 दिरहम का। फरमाया आधी सल्तनत चाहिए। बादशाह ने कहा कल तो 10 दिरहम का दे रहे थे। बहलोल दना ने फरमाया कि कल तूने देखा नहीं था, बिन देखे सौदा था, आज देख लिया है, आधी कायनात तेरी चाहिए। अल्लाह अकबर। ये बिन देखे सौदे हैं। ये मकाम और मर्तबा जो इन लोगों ने पाया, ऐसे नहीं पाया। तो तकवा अख्तियार करना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए। अब वक़्त की किल्लत है, क्योंकि अंधेरा वैसे ही छा चुका है। मैं तो असर की नमाज़ पढ़ के आया था, इसलिए पंडाल में शायद आपकी सब की रहती है, तो हम ख़त्म करते हैं ताकि आप नमाज सारे पढ़ लें। क्योंकि इन महफ़िल पाक का मकसद ये होता है कि आपके दिल को रूहानी ताकत मिले, यहाँ आने की वजह से आप पक्के नमाजी बने। ये नहीं कि यहाँ आने के बाद आप नमाज ही छोड़ दें, हैं या नाता सुनन आए सो या लंगर खान आए सो। नहीं यार, जो क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल होता है ना, उसकी तैयारी करनी है। क्या ख्याल है? करनी चाहिए ना। और अल्लाह ने पूछना तो है ना, हर बंदे ने अल्लाह के सामने जवाब देना है। उस दिन से डरना चाहिए और उस दिन की तैयारी करनी चाहिए। अल्लाह पाक हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।